May I further request the Director, NIT Jamshedpur, to felicitate the Honorable Minister of Education and Land Reforms and Minister of Transport. May I now request Director, NIT Jamshedpur, to felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. I now invite Chairperson BOT, NIT Jamshedpur, to address the gathering. To felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. Honorable President of India, Honorable the Governor of Jharkhand, and the Minister concerned, and the Director, all of you parents as well as students, I say hello to you. Ladies and gentlemen, I have said only 3 lessons in my life, and the 3 A's are always steal, always beg, and always communicate. What do I mean by begging? Begging, it is not taking an arm from anyone else as you see a beggar doing, but beg everyone around you to stay with you. Anyone that you like, whether it's the company, whether it's your individual, whether it is anybody, you always beg them to stay with you, as always, and do that. Always steal. I don't mean steal IPs, but never have this feeling that you're going to discover everything yourself. And you will steal any idea that you can make into a bigger and better idea. And you will distribute that idea all over the world. Therefore, steal and beg always. Always communicate. And today's communication has become very important because as parents, you need to communicate with your children. And they will not listen to you unless you communicate right from the age of 3 or age of 4. Because earlier we sat around a table, whenever our father and our mother spoke, we were not allowed to speak. And we sat down on the dining table as much as we could, but always communicate with children today because they want to know more. They want to ask why about everything in life. Therefore, you must always, like tennis, serve the nation, serve whoever is successful, because when you have a good serve, that's how you grow in tennis. But always serve the nation, and the Prime Minister has said, so right, the world is yours, and you must now communicate, and you must always serve. Never wait for appointments which come, you have to take it, like for instance, against the opportunity to make appointments doesn't come. It comes when it comes and you are ready for it. Because today the young people are ready. The times succeed, you will always, as Goethe said, and to look, and you must quote, is that knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. And that's what I pray for all of you youngsters to pray for and to do as much as you can. Ashu. May I further request the Director, NIT Jamshedpur, to felicitate the Honorable It is now my privilege to announce the conferment of the honorary degree of Doctor of Literature upon Srimad Swami Govind Dev Giri Maharaj Ji, Treasurer Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, Ayodhya, by the Honorable President of India. To felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. I now announce the conferment of the honorary degree of Doctor of Philosophy upon Sri R.K. Behra, Founder, Chairman, RSP Group, by the Honorable President of India.
May I further request the Director, NIT Jamshedpur, to felicitate the Honorable Minister of Education and Land Reforms and Minister of Transport. May I now request the Honorable President of India to kindly present the Institute gold medals to the overall toppers in undergraduation and post-graduation. Priyanshu Raj, BTech Electrical Engineering. To felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. Krishnashish Mandal, MSc Physics. Please be seated. May I further request the Director, NIT Jamshedpur, to felicitate the Honorable I now Minister of invite Honorable Minister of Education Revenue, and Land Minister of Reforms and Minister of Registration Transport. and Land Reforms and Minister of Transport to deliver his speech. to felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. झारखंड की इस वीर भूमि पर महामहिम का ये दोबारा आगमन है। 15वें दीक्षांत समारोह एनआईटी में यहाँ के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए तराशे गए तमाम छात्रवृंद को एक पड़ाव के रूप में आज आप सभी यहाँ हैं और आने वाला दिन में राष्ट्र निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर हमारे बीच पुनः मां महिम महोदया को मैं जोहार करता हूं और इस राज्य के माननीय गवर्नर साहब को मैं जोहार करता हूं। आप सबों की सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबों को शुभकामना देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको जोहार। जय झारखंड। I now invite Honorable Governor of Jharkhand to deliver his speech. To felicitate the Honorable Governor of Jharkhand. यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, श्री दीपक बिरुआ जी माननीय मंत्री झारखंड, उपस्थित माननीय सांसद विधायकगण, श्री सुनील अलग जी अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, प्रोफेसर गौतम सूत्रधार जी निदेशक एनआईटी जमशेदपुर, संकाय सदस्य कर्मीगण, उपस्थित सभी शिक्षाविद अतिथिगण, मेरे प्रिय उपाधि धारक विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, प्रेस व मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबको जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया का समस्त झारखंड वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनकी गरिमामय उपस्थिति से यह दीक्षांत समारोह और भी प्रेरणादायी तथा ऐतिहासिक बन गया है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी उपाधि धारक विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर आपके शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, साथ ही समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारियों की एक नई शुरुआत भी है। इस अवसर पर मैं आपके अभिभावकों, मार्गदर्शकों,
तथा समर्पित शिक्षकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनका आपकी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर मैं युग दृष्टा जमशेदजी टाटा की दूरदर्शिता का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने औद्योगिक विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण और मानवीय गरिमा को समान महत्व दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्य आज भी इस क्षेत्र की औद्योगिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को दिशा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में मैं टाटा परंपरा को और अधिक सुदृढ़ करने वाले विगत वर्ष दिवंगत माननीय रतन टाटा जी का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं, जिन्होंने जमशेदजी टाटा के आदर्शों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। NIT जमशेदपुर की इस वैचारिक विरासत का एक सशक्त प्रतीक है। यहाँ तकनीकी शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वित स्वरूप है। इस संस्थान ने वर्षों से देश को ऐसे अभियंता और तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान किए हैं, जिन्होंने भारत की औद्योगिक आधारभूत संरचना तथा वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं संघर्ष, संकल्प और सादगी की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने 6 वर्ष से अधिक समय तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी सादगी, मृदु स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने जनमानस में विशिष्ट स्थान अर्जित किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की उनकी यात्रा विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि शिक्षा, अनुशासन और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मैं जब भी जाता हूँ तो पाता हूँ कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक होती है। ये हमारी बेटियों की प्रतिभा, क्षमता और आत्मविश्वास का सशक्त प्रमाण है। ये प्रदर्शन केवल महिला सशक्तिकरण का नहीं बल्कि एक सशक्त और विकसित भारत की झलक भी प्रस्तुत करता है। झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने दायित्व निर्वहन के दौरान मुझे राज्य के लगभग सभी जिलों के विभिन्न सुदूरवर्ती ग्रामों में जाकर संवाद करने का सौभाग्य मिला। इस क्रम में मैंने नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया और राज्य की जमीनी वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया। मैंने यहाँ ये भी महसूस किया कि राज्य के समग्र विकास में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में NIT जमशेदपुर जैसे संस्थानों से अपेक्षा है कि वे न केवल कुशल अभियंता तैयार करें बल्कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक भी गढ़ें। प्रिय उपाधि धारकों, आज आप जिस ज्ञान और कौशल से लैस होकर इस संस्थान में उपाधि ग्रहण कर रहे हैं वो केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है। ये समाज की समस्याओं के समाधान, उद्योगों के सतत विकास और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने का एक सशक्त साधन है। आपके निर्णय, आपकी सोच और आपका कर्म बोध आने वाले समय में देश को दिशा और दशा निर्धारित करेगा। तकनीकी दक्षता के साथ साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य आपके व्यक्तित्व की आधारशिला होनी चाहिए। तकनीक तभी सार्थक है जब वो मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। मुझे विश्वास है आप नवाचार को करुणा, उत्तरदायित्व और सामाजिक चेतना के साथ जोड़ेंगे। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में
निरंतर अग्रसर है। डिजिटल वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की दिशा में एक स्पष्ट, दूरदर्शी और प्रेरक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे तकनीकी संस्थान, वैज्ञानिक तथा युवा अभियंताओं की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि NIT जमशेदपुर के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी ज्ञान संपदा, नवाचारी दृष्टि और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्थन के बल पर इस संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो समाज और राष्ट्र के कल्याण में प्रयुक्त हो। आप जहाँ भी कार्य करें, जमशेद जी टाटा की दूरदृष्टि और NIT जमशेदपुर की गौरवशाली परंपरा को अपने आचरण में जीवित रखें। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, सफल और राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, झारखंड सरकार में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, NIT जमशेदपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री सुनील अलग जी, निर्देशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर जी, गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्य, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जुहार। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थित राष्ट्रीय महोत्सव के इस संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पिछले 65 वर्षों से ये संस्थान विज्ञान और तकनीकी के प्रचार एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मैं आज के दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करना
कई वर्षों की उपाधि आपकी के लिए आपकी मेहनत और परिणाम है। ये आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य के लिए नई संकल्प लेने का अवसर है। लेकिन आज मुझे लगता है क्योंकि साल भर के संघर्ष, परिश्रम, अनिद्रा होकर के जो परिश्रम आप किए हैं, आज मुझे थोड़ा इतना उत्साह नहीं लग रहा है। आज मैंने देखा जो 2 बच्चों को हम गोल्ड मेडल दे रहे थे, 2 लोगों को मैं डिलीट दे रहे थे, कोई बच्चे ताली नहीं बजाए। मुझे लगा कि बच्चों को शायद मना किया गया है। नहीं, बच्चे थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, कहीं अभी 3 बज गया, भूख लग रहा होगा, तो बच्चे ताली बजाए नहीं। कहते हैं देना है तो लेना है। आपके उनके टाइम पे ताली नहीं बजाए, फिर आपके टाइम पे कौन ताली बजाएगा? आज खुशी का माहौल है, आज पूरा उत्साह का माहौल होना चाहिए। यहाँ तो मुझे लगता है ये पर मातम सा चल जाए, पूरा चुपचाप। अभी बताया गया है कि हम महिलाएं जो बालिकाएं ज़्यादा बालकों से ज़्यादा अच्छा करते हैं। बालिकाएं भी तालीम पता नहीं भाइया लोग हम लोगों को साढ़े गुस्सा करेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ। आपका दिन अपने माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपको ये सौभाग्य मिला है। मैं इस समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित हुए स्वामी गोविंद देव गिरी जी और रविंद्र कुमार बेहरा जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम एनआईटी जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। मुझे बताया गया है कि एनआईटी जमशेदपुर में ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया गया है जो शिक्षा और नवाचार को लोगों की ज़रूरतों और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। सरकार के प्रयासों से परंपरागत क्षेत्रों के साथ साथ डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे गैर प्रासंगिक क्षेत्र भी युवाओं को उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम आप जैसे युवा इन अवसरों का उपयोग करके न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। मैं आशा करती हूँ कि ये काउंसिल विद्यार्थियों में इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। एनआईटी जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक तकनीकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। ये न केवल समाधान खोजेंगे बल्कि अन्य संस्थानों और उद्यम जगत के साथ सहयोग करके उन संस्थानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलाएंगे।
हमारे सामने कई ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। देवियों और स्वजनों, शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षा और उपाधि प्राप्त करने के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये शोध के प्रमुख केंद्र है तथा राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशालाएं भी है। यहाँ पर देश के भविष्य की सोच आकार लेती है। NIT जैसे संस्थानों में शिक्षित इंजीनियर्स को ऐसे नेशन बिल्डर्स की भूमिका निभानी चाहिए जो तकनीकी विकास को मानव कल्याण का माध्यम बनाए। वर्ष 2047 तक किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल उनकी रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्थान और उनके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। भविष्य में वर्ष 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्क अत्यंत महत्वपूर्ण चला रहे हैं। सकारात्मक NIT जैसे अग्रणी संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके ये योगदान के बल पर भारत एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो। आपकी शिक्षा और ज्ञान को तभी सफल माना जाएगा जो उसका लाभ जन सामान्य तक पहुँचे। जब आप संवेदनशीलता के साथ तकनीकी कौशल का प्रयोग करेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिना करुणा के किया गया आविष्कार केवल एक मशीन विकसित कर सकता है, लेकिन करुणा से प्रेरित नवाचार समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। भविष्य में आपके सामने कई चुनौतियां आएगी। उस समय आपका चरित्र बल और आपके नैतिक मूल्य ही आपके सबसे प्रभावी मार्गदर्शक होंगे। आपको मेरी सलाह है कि सफलता को केवल बड़े पैकेज या ऊंचे पद से नहीं मापे, बल्कि इस आधार पर उसका आकलन करें कि आपके ज्ञान या कार्यों से कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मैं आप सबके अत्यंत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और परिश्रम से न केवल आपका और अपने परिवार का, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाएंगे। आप सब भारत को एक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।